So, first of all, I was given a beautiful notice this morning when I came in. सबसे पहले जब मैं यहाँ भीतर आया तो मुझे बहुत ही सुंदर ऐसा तो ये इसलिए दिया गया क्योंकि शाक्तोजी जी का धर्मचारिणी बनने का पहला सालगिरह है। Huh? We can cut cake. Vidyadrishti also. Ah. Huh? Cake for birthday. Cake. We have a cake. Oh, you have a cake. Yeah. Later. Oh, like, okay. Yeah. That's fine. Okay. What you doing? She's producing cake. I see. It's an app, a cake app. And I'd like to congratulate Shuddhavadri on a beautiful shrine which is getting bigger and bigger. तो मैं शुद्धवज्र जी का अनुमोदन करना चाहूँगा। ये पूजा स्थान बहुत अच्छा और समृद्ध होता जा रहा है। There's the refuge tree on the right there, on the left there rather. तो हमारे बाईं ओर शरवृक्ष है। I should say this refuge tree is not accurate. तो मैंने ये कहना चाहिए कि ये शरवृक्ष जो है वो उतना सही नहीं है, सटीक नहीं है। I did ask that we didn't use this, and what's his name? Sadaraja himself, who painted it, realizes that it's not accurate. Yeah. तो ये जो चित्र है मैंने सदाराजा को भी कहा था कि ये उतना बराबर नहीं है, ठीक नहीं है और हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको भी लगा कि ये बराबर नहीं है। It's okay, but don't visualize that. तो ये ठीक है लेकिन इसका संदर्शन मत करें। The Buddhas of the gurus of the past are not in the correct formation. Yeah. तो खासकर जो भूतकाल के 16 गुरु है जिस रूप में वो चाहिए उस रूप में या जिस प्रकार से वो चाहिए वैसा नहीं है। Bhante is quite careful about his way of seeing them. तो भंते इसमें बहुत ही सतर्क थे जिस प्रकार से वो उन्हें देखा करते थे उसके बारे में। Otherwise it's okay. उसके अलावा वो ठीक है। So we've been slowly exploring the mandala. तो हम धीरे-धीरे मंडला जो है उसकी खोज कर रहे हैं। And I'm going to go a little bit more fully into it today. तो आज मैं बहुत विस्तार से पूरी रूप से उसके अंदर जाने वाला हूँ। But I want to complete with the last 5 elements. और अंतिम जो 5 अंग है उसके साथ मैं उसका समापन करना चाहूँगा। We've done Mount Meru, we've done the iron wall. हमने मेरू पर्वत को देखा है और जो लोहे की दीवार है उसको भी हमने देखा। We've done the 4 continents and their subcontinents. और हमने 4 महाद्वीप और उसके साथ उनके उपद्वीप भी देखे हैं। We've done the 4 wish fulfilling objects. और जो भी इच्छा पूर्ति करने वाली वस्तुएं हैं उनको भी हमने देखा है। And the 8 precious things of the Chakravartin Raja. और चक्रवर्ती राजा के जो 8 मूल्यवान बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसको भी हमने देखा है। And we've done the 8 offering goddesses. और 8 जो अर्पण की देवियां हैं उनको भी हमने देखा है। So we've still got the sun and the moon. अभी बचे हुए हैं सूरज और चंद्र। We've got the banner of victory. और विजय पताका जो है वो भी वहाँ पर है, विजय ध्वज। And the umbrella. और विजय छत्र जो है वो भी वहाँ पर है। And the treasures of all gods and men. और सभी देवों और मनुष्य का जो खजाना है वो भी अभी बचा है। So let's see what all these signify. तो देखते हैं कि ये सब का महत्व क्या है। What is the sun? सूरज क्या है, सूर्य क्या है। What is the moon? तो चंद्रमा क्या है। Well, you could say there's the sun and there's the moon. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सूरज है और यहाँ चंद्रमा है। But clearly they mean something more than just the physical
planets. तो एक भौतिक ग्रह करके जो उनका अस्तित्व है उससे कहीं ज़्यादा उनका अर्थ है। They mean something of deep, deep significance. तो उनका अर्थ बहुत ही गहरा ऐसा होता है। So, well, of course, the sun is the light of the day. तो सूरज जो है वो दिन का प्रकाश है। The moon is the light of night. और चंद्रमा जो है वो रात का प्रकाश है। So, what do they mean? What do they mean to us, to all human beings? तो उनका फिर हमारे लिए या पूरे मनुष्य मात्र के लिए क्या अर्थ है? And what do they mean in relation to each other? और एक दूसरे के साथ उनके संबंध का क्या अर्थ है? Well, those of you who do Qigong know the idea, the Chinese idea of yin and yang. तो जो लोग चिकुंग करते हैं उनको पता है कि चीन की जो कल्पना है यिन और यांग की, These two fundamental forces within the universe. तो ये पूरे विश्व में ये जो मूलभूत ऐसी दो शक्तियां हैं, If you like, the masculine and the feminine. तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जो ऊर्जा है वो पुरुष तत्व के साथ है और दूसरी ऊर्जा जो है वो स्त्री तत्व के साथ है। The light and the dark. एक अंधियारा है और दूसरा प्रकाश है। You could say that the whole of conditioned reality consists in a blending of these two forces. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो पूरी संस्कारित अस्तित्व है एक प्रकार से इस प्रकार की दो बातों का मिश्रण है, एक तरफ अंधियारा है और दूसरी तरफ प्रकाश है। So you have to think of the sun and the moon in a different way. और इसलिए हमने सूरज और चंद्रमा को अलग ढंग से सोचना चाहिए। You have to look at them as symbols for deep, deep forces. और हमने उनको बहुत गहरे ऐसी ऊर्जा का प्रतीक करके देखना चाहिए। And yes, as I say, these two forces that make up everything. तो ये ऐसी दो ऊर्जाएं हैं जो हर एक बात को बनाती है, घटाती है। That they're, if you like, the most fundamental duality. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मूलभूत ऐसा अद्वैत है। I was quite quite interested recently looking at the mythology of Mexico before the Spanish came. तो अभी हाल ही में मैं स्पेनिश लोग मैक्सिको में आने से पहले वहाँ का जो रहस्य शास्त्र या गुण शास्त्र है उसको देख रहा था। And they had an idea that there was a sort of basic God. तो उनके एक प्रकार से ऐसी कल्पना है कि वहाँ पर कोई एक मूलभूत ऐसा भगवान है। And they called this God the God of duality. और इस भगवान को वो कहते हैं कि ये द्वैत का भगवान है। And this God had sort of two aspects. मानो इस भगवान को दो अंग है। One male, one female. और एक अंग जो है वो पुरुष है और दूसरा स्त्री है। But they were completely united. लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ है। Then that gave rise to all duality. और वो उसी के कारण फिर सारा जो द्वैत है वो निर्माण होता है। So an idea that you'll find in many different religions. तो ये ऐसी कल्पना है जो अनेक धर्मों में आप पाते हो। That once you step away from the ultimate. जब आप जो अंतिम है उससे जब बाहर आते हो, what in Buddhism we refer to under the heading of non-dual. तो जिसको बौद्ध धर्म में हम अद्वैत करके जानते हैं। You get a duality. तो जब आप अद्वैत से बाहर आते हो तो क्या मिलता है? तो आपको द्वैत मिलता है। And that's represented by the sun and the moon. और ये जो द्वैतता है उसको ही सूरज और चंद्रमा के माध्यम से दर्शाया जाता है। You see it at the top of stupas. हम देखते हैं कि स्तूप का जो ऊपरी हिस्सा होता है, You see a half moon, a crescent. तो वहाँ पर चंद्रकोर होती है। And then the sun. और उसके ऊपर जो होता है सूरज होता है। And then on top of that you see a jewel. और उसके ऊपर फिर रत्न रखा होता है। So yes, this is indicating fundamental forces. तो एक प्रकार से ये जो मूलभूत ऐसी ऊर्जा है उसको दर्शाते हैं। So what about the umbrella, the precious umbrella? तो जो बहुमूल्य छाता है उसके बारे में क्या? छत्र है उसके बारे में क्या? What does an umbrella do? तो ये जो छत्र है या छाता है क्या करता है? An umbrella shelters you, yeah? तो जो छाता है वो आपका रक्षण करता है। It shelters you from the sun.
वो आपका सूरज से रक्षण करता है। In the monsoon, it shelters you from the rain. और बारिश में आपको बारिश से वो बचाता है। So this umbrella, this parasol, at the top of the whole universe, symbolizes the protective power of the Dhamma. और ये जो विश्व है उसके ऊपर जो ये छत्र है, वो एक छत्र एक प्रकार से इसका प्रतीक है कि पूरे विश्व को धम्म के माध्यम से रक्षित किया जाता है, बचाया जाता है। The Buddha's enlightenment, the Dhamma itself, protects all beings. बुद्ध का बुद्धत्व या धम्म जो है सारे मनुष्य मात्र को वो रक्षित करता है। So in our ideal universe that we're creating as an offering, तो हमारे आदर्शवत ऐसे विश्व में जिसको हम हमारे अर्पण के लिए निर्माण करते हैं, there's this umbrella that shelters all beings from pain and suffering. तो वहाँ पर ये फिर छत्र है जो छत्र सारे मनुष्य मात्र को सुख दुख से और वेदनाओं से बचाता है। So when you put the umbrella on the mandala that you're making, जब आप जो मंडल बना रहे हो उसमें इस छत्र को रखते हो, so reflect on this. तो जब भी आप इसे रखते हो तो उस पर ऊपर चिंतन करें। So sort of connect with the protective power of the umbrella. और इस छत्र का जो भी बचावात्मक ऊर्जा है उसकी या बचाने की ऊर्जा है उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए। Think of being in the monsoon with the rain pouring down. ऐसी कल्पना करें कि मानो आप बारिश में हो और जोर से बारिश गिर रही है, and you hold an umbrella above your head, you don't get wet. और फिर आप अपनी छतरी जो है आपके सर के ऊपर धरते हो और आप फिर भीगते नहीं हो। Or think when it's very, very hot, the sun is very strong. जब बहुत क्या म्हणतात त्याला धूप होती है, तब बहुत कड़ी धूप होती है, then you hold the umbrella over your head and you're kept cool. और फिर वहाँ पर आप छाता जो है वो आपके हाथ में पकड़ते हो और आप धूप से बचते हो। And yes, the Dhamma is like that. तो धम्म बिल्कुल इसी प्रकार से है। It protects you from the dangers, the pain of samsara. तो धम्म आपको खतरे से और संसार का जो दुख है, वेदना है, उससे बचाता है। What about the banner of victory? फिर जो विजय ध्वज है या विजय पताका है उसके बारे में क्या? You know what that looks like? तो विजय पताका किस प्रकार से होती है आपको पता है? Shuddhavajri made one to put on top of the stupa that we built at Bhaja. तो शुद्धवज्री ने स्वयं उसको बनाया था जो स्तूप हमने भाजा में निर्माण किया है उसके ऊपर रखने के लिए। So it's a series of coloured cylinders. तो एक प्रकार से कई सारे रंगों के कपड़े का वो गोलाकार ऐसा बना होता है that hang down one under the other. और ये जो श्रृंखला है एक दूसरे के नीचे उसको सिया जाता है। And it seems that this is an ancient Buddhist, ancient Indian symbol. तो ऐसा माना जाता है कि ये पुरातन ऐसा भारतीय प्रतीक है। It's raised when victory has been achieved. और ये तब फहराया जाता था जब विजय प्राप्त किया जाता था। Just like when one country defeats another, they raise their own flag. Yeah. तो जैसे एक देश दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करता है तो उनका जो ध्वज होता है वो लहराते हैं। So at the moment the Russians are trying to put their flag in Ukraine and Ukraine's trying to put their flag back where it was before. Yeah. और अभी रशिया जो है वो अपना ध्वज जो है यूक्रेन में फहराना चाहता है और यूक्रेन फिर से जहाँ पर वे थे अपना ध्वज जो है वहाँ पर फहराना चाहते हैं। I saw that when the Ukrainians took back a big city, the first thing they did was fly their flag. तो मैंने देखा है कि जब फिर से यूक्रेन ने अपनी जो मुख्य शहर है उसका कब्जा कर लिया तो पहली बात उन्होंने की अपना ध्वज वहाँ पर लगा दिया। It's a common theme through human history. तो मनुष्य के इतिहास में ये एक सर्वसाधारण ऐसी थीम को क्या बोलेंगे बात रही है, मतलब तो क्या बोलेंगे कल्पना रही है। Yeah, idea. Yeah. And yes, in this case, what is the victory over? तो फिर इस संदर्भ में हमारा जो विजय है किस पर है? It's obvious, isn't it? ये बिल्कुल स्वाभाविक है। It's not the victory of one power over another.
तो ये कोई ऐसा विजय नहीं है जो एक शक्ति का दूसरे शक्ति के ऊपर है। It's the victory of the Dhamma over all evil forces. तो ये धम्म का विजय है, वो सारी बुरी शक्तियां जो है या कुशल शक्तियां हैं उनके ऊपर। It's well, like the Samrat Ashoka decided that after Kalinga he would conquer through the Dhamma. और जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद निर्णय लिया कि वे अभी धम्म से ही लोगों को जीतेंगे। He would conquer and, if you like, raise the Dhamma Dvaj. और उन्होंने सोचा कि धम्म के माध्यम से ही वो जीतेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है ऐसा सोचना तो धम्म का ध्वज वो लगाएंगे। The Vijay Dvaj in that sense. तो उस अर्थ से फिर ये विजय ध्वज है। So again, when you see the banner of victory, connect with that meaning. और जब भी आप ये विजय पताका को ध्वज को देखते हो तो इस अर्थ के साथ जुड़ने का प्रयास करें। You know that the banner of victory has the 5 colors of the 5 Buddhas. तो आपको पता है कि ये जो विजय ध्वज है उसको 5 रंग होते हैं जो 5 बुद्धों के हैं। They're not in the usual order, actually. वहाँ पर वो नित्य क्रम से नहीं आते हैं। Because they also symbolize the 5 elements. क्योंकि वो 5 जो धातु है उससे भी उसका संबंध है। But yes, clearly when you raise the Vijay Dvaj, in this sense, it's the victory of the Dhamma. तो जब इस अर्थ से आप विजय ध्वज देखते हो तो वहाँ पर वो धम्म का विजय होता है। So yes, it's important to connect with this.